फ्रेंड्स वेलकम वर्चुअली। इनफैक्ट अलीगढ़ में हम बहुत अच्छी मेज़बानी करते हैं, लेकिन ऑनलाइन मोड में ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आई अगेन वेलकम यू एंड माय ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर फायजा अब्बासी, प्रोफेसर साजिद जमाल साहब, वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन, and his team. And the responsibility which has been given to me, it is about research project management. My words to you, I will be at your expectations, so please allow me to move on. So to start with, let me fine. So the friends, this is the responsibility which has been given to me, research project management. As an academician or as a researcher, at one point of time, at any point of time, we are supposed to go for research. If you are not a sound researcher, then definitely you are going to have the problem in days to come. Nowadays, it really very easy to move on the research. So my words to you, within 90 minutes, I will be at your expectations, and we are going to discuss number of AI apps, how to conduct the research. AI apps. As I discuss, as I have been introduced, little bit passionate about sharing the knowledge, having the background of statistics, psychology, and computer application. Perhaps I will be able to justify my presence in this class. So move on. Friends, we all are familiar about project management. Either we are going to assign a research problem to the students, or going to submit the proposal to the funding agency. We need to be very sensitive about various resources that we have in our hand. So project management can simply be defined as is the planning and organizing of institution resources to move a specific task or to achieve the goal towards completion of the project as well. So it is simply the one of the slide that I wish to sensitize you what we are going to discuss in this class, project management. So coming to the very important slide, these 12 activities you need to fulfill as a project manager or as a supervisor during this process. So the project management depends on various factors, and it is important to carefully consider these aspects. Friends, I used to discuss number of times in the classes. Actually, this research is the learning process. हमने और आपने सभी ने PhD किया है. We have submitted our research as well. We have done the research projects as well. But over the process, it is a learning process. हर दिन हम कुछ सीखते हैं, हर एक्टिविटी में हम कुछ सीखते हैं, जिससे कि we are able to solve the problem in a very, very optimistic manner. So in this process, I have classified the management of the project into the 12 different categories. The first is research problem or research title. Friends, when we are submitting the research proposal to the funding agency or the board of studies for approval, we need to work on it. Research problem and research title. And one of the success story from last almost 1 year is that number of projects are in the pipeline. Number of project I am heading in the UGC HRDC also. आज सुबह में भी डायरेक्टर का फोन था. One of the project for the on MOOCs, how to develop the MOOCs
has been sanctioned by the UGC, and the applications are being accepted at the UGC HRDC Aligarh. So the success story is because of the fact I have been using the technology for making a difference. तो रिसर्च प्रॉब्लम हमारी कैसी होनी चाहिए और वो टाइटल कितना बर्निंग होना चाहिए, देन यू विल सी द जेमिनी और क्लिक अप आर द एआई एप्लीकेशंस दैट यू आर गोइंग टू हेल्प. वंडरफुल एप्लीकेशंस. Perhaps one of the case study I wish to discuss with you कि एक रिसर्च स्कॉलर 2 साल तक एक रिसर्च प्रॉब्लम पर काम करता रहा और one day she came to know that the same research problem has been studied by a different researcher. 2 साल आपने उसके खाए हैं. तो as a teacher, it is our responsibility to guide the subordinates or students. The time is being utilized in a nice way. ऐसा नहीं होना चाहिए, डिसअपॉइंटिंग सीन नहीं होना चाहिए. हम और आप तो सॉरी कह देंगे, लेकिन उसके 2 साल, उसका मोटिवेशन, उसका इंटरेस्ट, वो तो खत्म हो गया. रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च टाइटल हम कैसे डिसाइड करें? AI application will help you. How to prepare the synopsis, set research questions and objective. Theory is there, books are there, but during this time, perhaps we have been trained in such a fashion we hardly go to the books or other medias. हम इंटरनेट पे बैठते हैं और बहुत सारी चीजें जस्ट क्लिक अवे जान लेना चाहते हैं. तो Cohere will help you how to frame the research questions and objectives for your research study. Literature review, friends, आपने देखा हुआ number of years, 6 महीने, 1 साल, 2 साल लगता है कि to examine the gap जो existing knowledge है और जो आप प्लान कर रहे हैं. लिटरेचर रिव्यू जो शायद सालों और मंथ्स में काम होता था, दैट वी कैन डू इन ए वीक और सो. These 3 AI apps I am going to discuss with you. 5-5 मिनट एक एप्स में लगेंगे और you will have the wonderful knowledge. Resources. As a project manager, number of times you are supposed to analyze the data. SPSS, SAS, Statistica, number of data analysis softwares are there. They are commercial softwares. It's really very difficult to go for it, for the institutions, for the individual as well. I'm going to discuss with you the Jamovi, one of the freeware application. सारी जितनी भी application मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये freely available है इंटरनेट पर. Jamovi is the wonderful statistical analysis software. It's parallel to the SPSS. And you will be analyze your data within a fraction of second as you have been doing using the SPSS or Excel or other applications. Expertise. Friends, number of times हमें limitations language के होते हैं. The Bhashini has been developed by the Department of Computer Sciences of the Government of India. Wonderful application. Ethical considerations. Methodology about the research, how to create the survey, how to develop the questionnaire, wonderful knowledge. Timeline, friends, to move on, it is very important, we must enforce the timeline. कौन सी एक्टिविटी मुझे कितने दिन में करनी है? मेरे अंडर में 12 PhDs पिछले 8 साल में अवार्ड हुई हैं. ट्रस्ट मी, दे ऑल हैव बीन अवार्डेड विद इन द मिनिमम टाइम. 2 साल था तो 2 साल 1.5 महीने या 2 महीने, 3 साल है तो 3 साल 1.5 महीने या 2 महीने. I used to enforce the timeline.
इससे ज्यादा वक्त नहीं चाहिए रिसर्च के लिए। मैंने अपने यहाँ भी देखा है, 6 साल में भी जो पीएचडी अवार्ड हो रही हैं और मेरी 3 साल में अवार्ड हो रही हैं, माई मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स आर वर्किंग एज ए क्लास 1 ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोफेसर और काउंसलर. So you need to enforce the timeline. Potential challenges that you look into this might be impact. Many times we need to discuss or share the progress of our work before the RAC or Board of Studies. The Gamma application will help you to develop or create the PowerPoint presentation within few minutes. Stakeholder engagement, publication and dissemination. ये सारी चीजें, बहुत सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन पॉइंट यहाँ पर यही है, आई एम स्पीकिंग टू द एकेडमिशियंस. आई एम श्योर यू विल डाइजेस्ट दिस नॉलेज. मैं स्टूडेंट से बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ये सारी बातें आपके सामने लाया हूँ. वक्त कम मिलता है आपसे बात करने का, तो अगर आप ऑलमोस्ट वी आर लेफ्ट विद 60 मिनट्स, अगर 60 मिनट आप मुझे देंगे तो ट्रस्ट मी यू विल हैव द वंडरफुल टेक होम. Okay, friends, तो large number of open AI we are going to use it. तो सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस में एक्टिविटी है, चूजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम. ये सारा पीपीटी में शेयर करूंगा. डिफरेंट स्टेप्स आर देयर. डिफाइनिंग द इशू, स्कोप एंड फोकस क्या रहेगा, सिग्निफिकेंस एंड ओरिजिनलिटी ऑफ द रिसर्च क्या है, इथिकल कंसिडरेशंस क्या हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, रिफ्लेक्ट ऑन योर इंटरेस्ट एंड पैशन. फ्रेंड्स, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ओवर द इयर्स मैंने देखा है कि रिसर्च स्कॉलर से सबसे पहले उसका इंटरेस्ट पूछिए, उसका पैशन क्या है. इफ यू आर एबल टू एक्वायर हिज और हर इंटरेस्ट, तो ट्रस्ट मी हाफ वर्क इज डन. आपको उसका कमिटमेंट मिल जाएगा. इट वाज योर इंटरेस्ट, इट वाज योर पैशन. जब रिसर्च में हमारे पास स्टूडेंट आता है तो ही और शी इज ए मैच्योर इंडिविजुअल. प्रॉब्लम्स को समझता है, प्रॉब्लम को स्टडी करना चाहता है. अगर हम उसकी अपनी प्रॉब्लम को स्टडी करें तो 50% उसका कमिटमेंट मिल जाएगा और आपके लिए काम आसान हो जाएगा. और इफ यू आर सबमिटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट to the funding agency, again you need to look into yourself. मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा पैशन क्या है. नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स मैंने ICSSR के किए हैं, UGC के किए हैं. ओवर द इंडियन रेलवेज 39 मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स मैंने किए. लेकिन डेफिनेटली जो मुझे पैशन था, जो इंटरेस्ट था, वही मुझे एकेडमिक्स में लेकर आया. तो ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है. कंसल्ट विद मेंटर्स एंड एक्सपर्ट्स, सुपरवाइजर्स. अगर आप सुपरवाइजर हैं तो प्लीज गिव हिम और हर द स्पेस. आपसे आपका स्टूडेंट बात करे, वो डिस्टेंस नहीं बनना चाहिए. इफ यू आर एट द अर्ली स्टेज ऑफ द एकेडमिक्स, आप अपने सीनियर्स के साथ एक रिश्ता कायम करें, उनसे बात करें, उनकी राय लें, और जिससे कि एक टीम वर्क बनती है और एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट डेज टू कम आप डेवलप कर पाएंगे. प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस क्या हैं आपके प्रोजेक्ट के, एंड इंश्योर इथिकल प्रैक्टिसेस. इस डायरेक्शन में फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपसे बोला था कि पहली देखिए जो एप्लीकेशन है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ. एंड इफ यू गो टू द दिस गूगल and simply type the Gemini is the Google AI app. Earlier it was Bard. आप इस तरह से क्लिक करेंगे और आप गूगल लिंक, गूगल के साथ या अपना जीमेल के साथ आप इसे यूज कर सकते हैं. इट्स फ्रीली अवेलेबल. परहैप्स यू ऑल हैव बीन यूजिंग इट, लेकिन आई एम यूजिंग फॉर द पर्पस दैट यू विल सी. अब देखिए, मैं अपनी रिसर्च प्रॉब्लम, एक मेरी स्टडी है जो मैंने बहुत करीब है मेरे हार्ट के. मैंने इस रिसर्च को स्टडी किया था. दिस इज द रिसर्च प्रॉब्लम, लेटरलिटी एंड एक्सीडेंट प्रोननेस. लेटरलिटी का मतलब है साइडेडनेस.
आप लेफ्ट हैंडर हैं, आप लेफ्ट आइड आपका डोमिनेंट है, लेफ्ट ईयर आपका डोमिनेंट है, लेफ्ट हेमिस्फीयर आपका डोमिनेंट है, और आपकी इरेगुलरिटीज के साथ क्या रिलेशनशिप है और एक्सीडेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मैं इस रिसर्च स्टडी को करना चाहता हूं, लेकिन अब देखिए, गिव मी 3 डिफरेंट टाइटल्स फॉर। अब देखिए यहां मैं, ये मेरा मेजर 2 वेरिएबल्स थे जो मैं लेके चल रहा हूं। इसको मैंने एआई ऐप को सबमिट किया, और आप देखिए कितना वंडरफुल आपको टाइटल्स रिसर्च के मिलेंगे। देखिए, हैंडेडनेस एंड रिस्क, ब्रेन बायस एंड सेफ्टी, बियॉन्ड लेफ्ट एंड राइट, हाउ ब्रेन स्पेशलाइजेशन माइट अफेक्ट एक्सीडेंट रेट्स। मत सेटिस्फाई हुए, यू कैन आस्क नंबर ऑफ टाइम्स मोर, लिखते जाइए। यू विल हैव एन नंबर ऑफ रिसर्च टाइटल्स, ये नहीं थकेगा। ऐसे ऐसे वर्ड्स का कॉम्बिनेशन आएगा कि जब भी आप अपने बोर्ड ऑफ स्टडी को या फंडिंग एजेंसी को सबमिट करेंगे, तो ट्रस्ट मी कि यू आर गोइंग टू हैव एडेड एडवांटेज। एक मैसेज जाएगा कि आपका प्रपोजल कितना साउंड है। मैंने आपसे डिस्कस किया कि देयर इज लार्ज नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज। मैंने ऐसा किया है, मुझे ऐसे रिजल्ट्स मिले हैं। सो प्लीज ट्राई टू यूज द एआई, एंड इट हैज बीन यूजिंग ओवर द ग्लोब टू द एक्सटेंट दैट वी कैन नॉट इमेजिन। जो लोग नहीं करना चाहते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक देम। वन ऑफ द businessman of America once said, he is Alvin Toffler, that there is a need to unlearn, relearn, learn, unlearn, and relearn. Learn, unlearn, and relearn. Those are not ready to relearn, they will be declared as an obsolete entity. हमने देखा है, पिछले दिनों देखा है। कमिंग जो वक्त आने वाला है उसमें देखिए, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आर गोइंग टू बी ऑनलाइन। आपको टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दिस इज नॉट एट ऑल अनएथिकल। जो लोग नहीं करना चाहते वो ये बात कह रहे हैं। मोर देन 100 प्रोग्राम्स मैं कर चुका हूं, मुझे कहीं पे किसी भी तरह से चैलेंज नहीं आया ओवर द नेशन। आप इसको एक्सेप्ट करें और आप इसको यूज करें। अभी देखिए, इसी डायरेक्शन में जो मैंने आपसे बात की कि टाइटल हम पहले फ्रीज कर दें। अब टाइटल मान लीजिए मेरा वही दिमाग में चल रहा है जो मैंने आपने देखा, दिस इज गोइंग टू द बैकग्राउंड रिसर्च टाइटल। यही एआई की बैकग्राउंड में, माइंड में यही, आई एम आस्किंग ऑन दिस टाइटल ओनली। आप दोबारा पेस्ट कर दीजिए। अब इससे कहते हैं कि रिसर्च क्वेश्चंस हमें बताइए, अगर मैं ये स्टडी करने जा रहा हूं, गिव मी द रिसर्च क्वेश्चन। देखिए, जनरल रिसर्च क्वेश्चंस आपके सामने। इज देयर ए रिलेशनशिप बिटवीन लेटरलिटी एंड एक्सीडेंट प्रोननेस? स्पेसिफिक क्वेश्चंस देखिए, डू लेफ्ट हैंडेड इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस ए हाई रेट ऑफ एक्सीडेंट्स? देखिए, मोर और क्वेश्चंस इसे पूछिए। Moderating factors, mechanism, specificity. You can ask longitudinal study as well. आप इससे पूछते जाएंगे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट यहाँ पे क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द एक्टिविटीज दोज आर रिपीटेटिव इन नेचर, दे कैन बी डन यूजिंग द टेक्नोलॉजी। आप एआई को इस्तेमाल करिए। अभी देखिए, हमने रिसर्च क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे एग्जामिन कर लिए। नाउ वी विल फ्रीज देम आफ्टर गोइंग थ्रू देम। नाउ कमिंग टू द रिसर्च, नाउ रिसर्च क्वेश्चंस, नाउ ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए, हम इससे ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं कि भाई मेरी इस स्टडी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव मुझे लिख कर दीजिए। देखिए, जनरल ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, एडवांस ऑब्जेक्टिव्स,
लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, मोर, और पूछिए। अंडरस्टैंडिंग, टारगेटेड, लॉन्गिट्यूडनल, आइडेंटिफाइंग, एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर देयर। पूछते जाइए, ये नहीं थकेगा। नाउ कमिंग टू द हाइपोथेसिस, देखिए आपके सामने जनरल हाइपोथेसिस, मोर स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, you can ask the directional or non-directional hypothesis, you can ask the null hypothesis or alternate hypothesis। आप लिखिए, ये आपको जवाब देगा। hypothesis, more, देखिए unlimited hypothesis। now coming to the more, now methodology, या मेथड क्या रहेगा इस रिसर्च स्टडी को, इस रिसर्च प्रॉब्लम को मुझे स्टडी करने में, मेथड। अब देखिए, देखिए data collection up, potential methods for this, observational studies, experimental studies, brain imaging studies, longitudinal studies, more methodology, देखिए एक्सपेरिमेंटल स्टडी आपको जाना पड़ेगा। एडवांटेजेस देखिए, स्पेसिफिक, अनलिमिटेड इनपुट्स यू आर गेटिंग थ्रू दिस एआई। इस तरह से जब रिसर्च प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करेंगे, फ्रीज करेंगे, और अभी ये चीज खत्म नहीं हो रही है, इट इज ए प्रोसेस। जब लिटरेचर रिव्यू में आएंगे तब वहां देखेंगे आप कि इस रिसर्च टाइटल पर क्या वाकई काम अर्लियर हुआ है, अगर हुआ है तो कितना हुआ है। जो काम शायद 1.5 साल 2 साल में हम करते थे, ट्रस्ट मी विद इन मंथ और वीक यू कैन फिनिश। मेरे साथ अगर बैठे हैं तो आप 1 घंटे में सारी एक्टिविटीज हम फिनिश कर लेंगे। ओके, सो जरूरत है फ्रेंड्स इस तरह के एप्टीट्यूड को लाने की, और यू कैन मेक ए डिफरेंस, यू आर मेकिंग ए डिफरेंस। As a teacher, you know कि perhaps I have my planned topics, and some of you may be very familiar with these applications. Now, number 2, research questions and objective, देखिए they have to be very clear, they need to be very specific, relevant, feasibility। feasibility का मतलब क्या है कि answering the questions within the limited resources। हमारे पास 3 साल का वक्त होता है या 5 साल का वक्त होता है, फंड्स के लिमिटेशंस होते हैं, पॉपुलेशन के स्पेसिफिक लिमिटेशंस होते हैं। इन सारी चीजों को ख्याल में रखते हुए हमें अपना रिसर्च को पूरा करना होता है। इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स, दिस विल हेल्प यू टू स्टे मोटिवेटेड। ओके, रिसर्च क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। देखिए एट द ऑनसेट देयर इज अ नीड टू सेंसिटाइज द रिसर्च स्कॉलर्स। उनको ये बात आपको बतानी होगी, इट इज ए कंप्लीट लर्निंग प्रोसेस। इफ यू आर ऑनेस्टली मूविंग ऑन द पाथ देन यू विल एंजॉय, एल्स देयर इज नो नीड टू गो फॉर इट। एक मेरी रिसर्च स्कॉलर्स थी, उन्होंने सिंगल वुमेन्स पर उनकी स्टडी थी। So we tried to study the emotion regulations among single women। सिंगल वुमेन्स देखिए उसमें कई कैटेगरीज हैं, अनमैरिड हैं, विडो हैं, डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं, 4 तरह के। हर एक के इमोशंस का रेगुलेशन डिफरेंट होता है। तो शी डिसाइडेड कि सर जो ये सब जो स्टेटा है पॉपुलेशन का, एक फैमिली की सेटिंग में इमोशंस डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब ये सिंगल वुमेन्स किसी आश्रम में जाके रहेंगी या दूसरी सेटिंग्स में रहेंगी तो वहां पे इमोशंस बहुत डिफरेंट होते हैं।
शी डिसाइडेड टू गो फॉर मथुरा, और वहां पे जो आश्रम थे वहां पे डीएम साहब से जाने के लिए परमिशन ली गई। डीएम साहब ने कहा कि नहीं, आई विल नॉट अलाउ यू, इट इज नॉट ए सेफ प्लेस टू मूव ऑन। एक औरत को औरतों के पास जाने से रोका जा रहा है, लेकिन शी वाज ऑफ द ओपिनियन कि सर मुझे तो जाना है, मुझे तो रिसर्च करनी है, नाउ इट इज यू टू डिसाइड कि आप कैसे मैनेज करेंगे। हुआ, और ऐसे ऐसे वंडरफुल रिजल्ट्स आए, और नाउ शी इज वर्किंग एज ए साइंटिस्ट इन एम्स। के इंटरेस्ट की जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये इग्नाइट आपको करना है रिसर्च स्कॉलर्स में। रिसर्च क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स की हायरार्की क्या होने चाहिए। इनिशियली यू हैव प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स एंड सो ऑन। मेजरेबिलिटी, जो भी ऑब्जेक्टिव हो वो मेजर किए जा सके, वो स्टडी की जा सके। टाइम बाउंड होना चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए, एंड कंसिस्टेंसी विद अर्लियर रिसर्च ऑल्सो। बहुत लिमिटेड स्कोप होता है देखिए रिसर्च में हम कुछ डिफरेंट कर पाते हैं, उसकी बहुत सारी वजह है। वन ऑफ द रीजन इज दैट अवर टारगेट पॉपुलेशन इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, they are recruiting the subject for the research study. Recruitment, हमारे क्या यहाँ क्या होता है, सिलेक्शन होता है, और सिलेक्शन इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स, जो मिल गया उसको स्टडी कर लिया। डिमोनेटाइजेशन, अरे सब बहुत अच्छी चीज है, 2 घंटे खड़े होकर अगर 400 रुपए मुझे मिल रहे हैं तो इससे बड़ी कौन सी बात है। टारगेट पॉपुलेशन, उसका मोटिव क्या है। लेकिन यही सब्जेक्ट अगर रिक्रूट कर रहे हैं आपको, यू आर पेइंग देम सम अमाउंट और समथिंग, some incentive you are offering them, then the responses given by them will be different comparing to the selected respondents. तो ये सीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी रिसर्च में, बहुत स्कोप लिमिटेड होता है, लर्निंग प्रोसेस होती है, और उस जिसको एंजॉय किया जा सके। रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको बता चुका हूं, और इसमें कोहरे करके भी एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, हम देखिए उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में देखिए मैं आपके साथ दूसरा एक एक्टिविटी करेंगे। एआई, देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ, सबसे पहला वाला जो लिंक आता है दिस, आप इसे क्लिक करिए, और आपको आपके जीमेल के साथ देखिए ट्राई नाउ, मैंने ट्राई किया, और मेरे देखिए सभी ये गूगल जीमेल के साथ मैंने ओपन कर रखा है। गो टू द प्लेग्राउंड, बिल्कुल जेमिनी की तरह से है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। अब देखिए बहुत सारी चीजें, आप इसमें बहुत एडवांस चीजें उसके मुकाबले। मैं अब यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, देखिए वही जो मेरे दिमाग में था, लेटरलिटी एंड एक्शन। अब देखिए यहाँ थोड़ा एडवांस से ले रहे हैं, राइट सिनॉप्सिस टू स्टडी। अब हम इससे बड़ा काम दे रहे हैं कि मेरे लिए सिनॉप्सिस लिखिए भाई, मैं इस स्टडी को करना चाह रहा हूं। मैंने एंटर किया, देखिए इन्होंने सिनॉप्सिस लिखनी शुरू कर दी, ले रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स लाए इन्होंने, और भी हमसे बातें की, और लिटरेचर का भी जिक्र किया, लेकिन अभी सेटिस्फैक्टरी रेस्पॉन्स ये नहीं मिला है। हालांकि बहुत सारी चीजें मिल रही हैं डिटेल्ड, मैं इसे और वार्निंग दे रहा हूं कि नहीं भाई ये इससे काम नहीं मुझे डिटेल दीजिए, डिटेल्ड सिनॉप्सिस मेरे लिए लिखिए। अब देखिए टाइटल आ गया, स्टडी ओवरव्यू आ गया, बैकग्राउंड एंड लिटरेचर आ गई, रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस आ गए, मेथोडोलॉजी देखिए आपके लिए कितनी वंडरफुल एप्लीकेशन मेथोडोलॉजी लिख कर दे रहा है कि दिस स्टडी विल एम्प्लॉय ए मिक्स मेथड्स अप्रोच इंटीग्रेटिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। फाइन, मेथोडोलॉजी देखिए, टेक्निक्स ये सारा लिखा, और एक्सपेक्टेड आउटकम्स,
देखिए, एक्सपेक्टेड आउटकम, इस रिसर्च को करने के बाद आपको इम्प्लीकेशन क्या मिलेगा, ये आ गया। और कंक्लूजन देखिए यहां पर आ गया। रिराइट, हम और इससे कह सकते हैं कि नहीं, हम मेरे लिए दोबारा लिखें भाई, कुछ नॉट कन्विंसिंग। देखिए, उसके जो पहले लिखा है उससे डिफरेंट होगा, और इट इज प्लेगरिज्म फ्री, इट इज लेस देन 10%, इन नंबर ऑफ केसेस इट इज 0%। आप चेक करा लीजिए, मैंने नंबर ऑफ टाइम्स कराया है काम, मैं पढ़ाता हूँ, कोर्स पढ़ाता हूँ, वर्कशॉप और प्रोग्राम्स भी मैंने किए हैं। चैलेंज, देखिए सिनॉप्सिस आपकी बन के तैयार हो गई। तो सेकेंड एप्लीकेशन जो मैंने आपसे डिस्कस की कि कंप्लीट सिनॉप्सिस के लिए ऑब्जेक्टिव रिसर्च क्वेश्चंस भी आप इससे एग्जामिन करा सकते हैं, लिखवा सकते हैं। तीसरी एप्लीकेशन जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा, जो एक्टिविटी है रिसर्च प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, इट इज लिटरेचर रिव्यू, वेरी टाइम कंज्यूमिंग। टू आइडेंटिफाई द गैप्स इन द नॉलेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, और इंटरेस्टिंग लर्निंग नहीं हो पाती है। ट्रस्ट मी, इंटरेस्टिंग लर्निंग नहीं हो पाती है। कितनी बुक्स, कितने जर्नल्स, कितने ऑनलाइन, अगर आप गूगल पर बैठिए तो मिलियंस ऑफ पेजेस विल बी देयर, इट्स नॉट पॉसिबल टू गो थ्रू देम। लिटरेचर रिव्यू, ये सारे स्टेप्स आपके सामने ये रहेंगे। सिस्टेमेटिक सर्च एंड रिट्रीवल होना चाहिए, क्योंकि माइक्रो लेवल पर आपको अपने काम को लेकर जाना है। ऑर्गेनाइज एंड मैनेज रिसोर्सेज, कि जो भी आप विजिट कर रहे हैं साइट को, जिस बुक या थीसिस या जर्नल को आप रीड कर रहे हैं, उसका मैनेजमेंट पूरा होना चाहिए। जोटेरो या मैंडले वगैरह आपने सुना होगा। आप रेफरेंस मैनेजर बराबर बनता जाना चाहिए। लिटरेचर रिव्यू, आपने एक पैराग्राफ ले लिया या मान लीजिए एक लिंक ले लिया, नाउ यू आर शॉर्ट ऑफ द रेफरेंस, वो तो आपने लिंक ही नहीं किया। तो इन सारी चीज, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। और यू नीड टू बी परफेक्शनिस्ट, कि जो भी काम करें आप 100% करें। थोड़ा सा तकलीफ होती है, लेकिन एट लास्ट यू आर गोइंग टू मेक ए डिफरेंस, शायद जो दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं। यू नीड टू इंश्योर स्ट्रक्चर्ड पर्सनैलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी देखिए काम नहीं चलेगा इन सम ऑफ द डोमेन्स। अपने को देखिए, आप कितने स्ट्रक्चर्ड हैं, कितने सिस्टमेटिक हैं, कितने परफेक्शनिस्ट हैं, तभी चीजें आगे बढ़ पाएंगी। ओके, आइडेंटिफाई द गैप, राइट द लिटरेचर रिव्यू, provide critical analysis, cite sources, revise and seek feedback. लिटरेचर रिव्यू, इसमें देखिए हम ये काम करेंगे। रिसर्च रैबिट एआई एप्लीकेशन है। इससे पहले और एक ऐप मैं आपके साथ शेयर करूंगा, चैट डॉग करके, देखिए एक और एप्लीकेशन है। अब देखिए, कंटिन्यू एज जीमेल का जो लिंक है उसके साथ मैंने इससे कहा कि मुझे उसी के साथ जाना है। फाइन, ओके। बेइंतहा अनलिमिटेड न्यू मैंने लिया, इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो देखिए, क्लिक और ड्रैग एंड ड्रॉप टू अपलोड, यहां पर रिसर्च आर्टिकल अपना लाइए। और लिटरेचर रिव्यू के बारे में देखिए हम बात कर रहे हैं, तो एक रिसर्च आर्टिकल देखिए हम ला रहे हैं। अपलोडिंग द फाइल, पीडीएफ या वर्ड डॉक्यूमेंट को इसमें अपलोड करिए।
थोड़ा सा लेस देन ए मिनट लेगा। ये रिसर्च आर्टिकल है, देखिए, व्हेन आई वाज वर्किंग विद द इंडियन रेलवेज रिसर्च डिजाइन्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, इट इज इन लखनऊ, ओनली R&D ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन रेलवेज। ये रिसर्च आर्टिकल मेरा पब्लिश हुआ था। अब देखिए इस एप्लीकेशन का क्या इस्तेमाल है। नॉर्मली हम अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि रिसर्च आर्टिकल पढ़कर आइए इस टॉपिक पर। एक रिसर्च आर्टिकल में 10-12 पेजेस होते हैं, कितने पेजेस आप पढ़ सकते हैं, कितनी नॉलेज को आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो जमाने चले गए साहब। अब देखिए यहां मैंने रिसर्च आर्टिकल अपलोड कर दिया। नाउ आस्क द क्वेश्चन। अब इससे क्वेश्चन पूछिए कि मुझे ये बताइए कि इस रिसर्च आर्टिकल में मेन फाइंडिंग्स क्या हैं। देखिए मैंने एंटर किया और यहाँ पे देखिए मेन फाइंडिंग्स आती चली जाएंगी। देखिए एक पैराग्राफ के अंदर मेन फाइंडिंग्स आ गई रिसर्च आर्टिकल की, और किस पेज से कहां से इन्होंने इंफॉर्मेशन ली है ये बराबर यहां से आ गई। देखिए 6 नंबर को क्लिक करेंगे तो यहां से इंफॉर्मेशन ये ले ली, 5 नंबर से देखिए यहां से इन्होंने इंफॉर्मेशन ली, 3 नंबर से यहाँ। आपके रिसर्च आर्टिकल से ही उन्होंने मेन फाइंडिंग्स निकाल ली। मेन फाइंडिंग्स क्या थी आपने देखिए विद इन 2-3 मिनट्स रिसर्च आर्टिकल की मेन फाइंडिंग्स जान ली। और देखिए इंपॉर्टेंट रिसर्च आर्टिकल्स, इस स्टडी में जो रिसर्च आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं उनको लिस्ट करिए। देखिए 7 इंपॉर्टेंट रिसर्च आर्टिकल्स उन्होंने मेरे सामने रख दिए। M.K. मंडल साहब ये डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल थे, मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं, सीनियर थे, लेकिन उन्हीं के साथ मैंने काम करना शुरू किया था डेट रियलिटी पर। तो देखिए इंपॉर्टेंट रिसर्च आर्टिकल्स आ गए। अब देखिए इसमें मैं रिसर्च डिजाइन में जानना चाहूं कि भाई इस स्टडी में क्या रिसर्च डिजाइन यूज की थी। देखिए रिसर्च डिजाइन आ गई। पार्टिसिपेंट प्लीज म्यूट कर लें। इस रिसर्च स्टडी में सैंपल साइज क्या था। देखिए 80 ड्राइवर्स पे स्टडी की गई थी, उनका डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक सारा आ गया। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था इस स्टडी का। ऑब्जेक्टिव सामने आ गए आपके। इसके ऑथर्स कौन कौन थे देखिए। ऑथर्स के बारे में जिक्र आ गया। क्या किसी और को भी एक्नॉलेजमेंट किया है इन्होंने। एक्नॉलेजमेंट देखिए, एक्नॉलेजमेंट किया है टिपिकल। सो फ्रेंड्स, the chat doc is the wonderful application which can help you to read a paper within few minutes। अब इस तरह से देखिए जो नॉलेज आपकी आप जो गेन करेंगे, एक्वायर करेंगे, और जो इंटरेस्ट और मोटिवेशन आपको बना रहेगा टू मूव ऑन द जर्नी, मेरे ख्याल से उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। वरना हम फ्रस्ट्रेशन होता जाता है कि बस प्रोफेसर बन गए, अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वगैरह वगैरह। अपने को मरने मत दीजिएगा। इफ यू विश टू एंजॉय द लाइफ यू नीड टू बी एक्टिव। और एक्टिव रहने के लिए देखिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। पिछले दिनों एक टॉक मैंने डिलीवर की थी कि द फियर ऑफ फंक्शन अमंग एल्डरली, बहुत ही सराहा उस बात को पार्टिसिपेंट्स ने। जरूरत इसी चीज की है
आई ट्राई टू इन्वोक द विंडो कि साहब आप टेक्नोलॉजी के साथ जुड़िए और एवरी डे यू विल हैव वंडरफुल लर्निंग एंड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। फाइन सर, जैसे मैंने वादा किया था, नाउ कमिंग टू द रिसर्च रैबिट, ये अनदर एआई है। देखिए इसको किस तरह से हम कर सकते हैं, आगे चलते हैं सर। मैंने इसको क्लोज किया। देन कमिंग टू द रिसर्च रैबिट। रिसर्च रैबिट देखिए मैंने टाइप किया और लॉग इन करिए। इस तरह से देखिए इसका जो फर्स्ट पेज है आएगा। अब देखिए यहाँ पे यू कैन मेक द कैटेगरी न्यू कलेक्शन। मैं यहाँ पे करता हूँ MMTP का, मेरा एक क्लास है MMTTP, ये आ गया MMTP। मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अब ऐड ए पेपर। अब मैं देखिए ये लिटरेचर रिव्यू के लिए हम यूज कर रहे हैं रिसर्च रैबिट को। अब यहां पर देखिए जो मेरा एक रिसर्च आर्टिकल था ये वाला, इसी का टाइटल देखिए मैं लेता हूं, यहां से कॉपी किया और मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया। टाइटल DOI PMID या कीवर्ड कुछ भी आप इसमें एंटर कर सकते हैं और सर्च इट। देखिए भूषण एंड खान ने 2006 में ये स्टडी की थी, ये इसने सर्च कर लिया। ऐड टू द कलेक्शन, आप इसे ऐड कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। देखिए यहां से क्लोज कर दिया, ये मेरा आर्टिकल यहाँ पे ऐड हो गया। अब देखिए यहां से ही इस तरह के रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड 927 सिमिलर वर्क फ्रैक्शन ऑफ मिनट के अंदर उसने सर्च करके आपके सामने ले आया कि लेटरलिटी एंड एक्सटेंट प्रोनेस पर सिमिलर टू सम एक्सटेंट, नॉट एग्जैक्टली, 927 लोगों ने काम किया है। आपका ये जो रिसर्च आर्टिकल है 42 लोगों ने रेफर किया है और 20 साइटेशंस इसको मिले हैं। अब देखिए अगर आप इसको क्लिक करें, इसको क्लिक करिए तो देखिए ये सारे जितने भी वहां पर रिसर्च आर्टिकल दिखाई दे रहे थे 927, ये सब देखिए यहाँ पे लिस्ट हो गए। अब एक एक आर्टिकल को आप देखते जाइए और जो आपको रिलेवेंट लगे उसको ऐड करते जाइए, तो यहाँ पे आपका ये एक अच्छा खासा डेटाबेस बनता चला जाएगा। और जो सालों में काम होता था, सिमिलर वर्क, अर्लियर वर्क, लेटर वर्क एंड दीज ऑथर्स एंड सो, सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। और यहाँ पे देखिए लिंकेजेस, देखिए वंडरफुल नेटवर्क, यानी किस किस तरह से लिंकेजेस हैं। अगर टाइमलाइन के साथ देखें आप यहाँ पे कि 2006 में ये काम भूषण एंड खान ने किया था, तो ये देखिए 42 लोगों ने इस तरह से डिफरेंट ईयर में इसको रेफर किया है, साइट किया है। आप किसी को भी क्लिक कर दीजिए, उससे रिलेटेड पूरा आर्टिकल आपके सामने आ जाएगा। ओके, उससे रिलेटेड फिर देखिए और लिंक मिल रहा है, और लिंक मिल रहा है। और लास्ट ऑथर, फर्स्ट ऑथर, लास्ट ऑथर देखिए खान से रिलेटेड वही सारी चीजें आ गई। देखिए इस तरह से रेफर किया, भट्टाचार्य साहब ने किया, कोरेन ने किया, हेल्पेन ने किया, वगैरह वगैरह। एक वंडरफुल नॉलेज आपको मिलती चले जाएगी। ऐड टू द कलेक्शन, इस तरह से आपके 8-10 रिसर्च आर्टिकल ऐड हो जाएंगे। उनको आप रीड करिए एंड ट्राई टू लुक इनटू द रियल गैप फॉर योर रिसर्च। उस तरह से आप करेंगे काम को तो देन यू विल हैव द वंडरफुल। इसी में PDF वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एक्सपोर्ट पेपर, पेपर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट में। ओके, शेयरेबल लिंक भी आप ले सकते हैं, कोलैबोरेटर्स आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं सर करने के लिए। ओके, तो मैं आपसे रिसर्च रैबिट के बारे में बात कर रहा था फ्रेंड्स। लिटरेचर रिव्यू और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो कि आपको एक पैराग्राफ में लिटरेचर रिव्यू बता, मैं आगे दिखाऊंगा।
अब रिसोर्स, सॉरी सर, सीमा कुमारी प्लीज म्यूट कर, पार्टिसिपेंट कुछ मदद करिए। डॉक्टर वीरू साहब बोलिए, मेरी मदद करें सर। यस सर, आई डिड। रिसोर्सेज देखिए, रिसोर्सेज के बारे में आते हैं सर। लाइब्रेरी रिसोर्सेज, ऑनलाइन डेटाबेसेस, रिसर्च टूल्स, फंडिंग, लेबोरेटरी, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस। देखिए डेटा एनालिसिस वाला जो एसपीएसएस, आर, जेमोवी वगैरह हर दुनिया भर के एप्लीकेशंस हैं। ओके, इसमें देखिए जेमोवी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर अब देखिए लिटरेचर रिव्यू हो गया, अब हमें पायलट स्टडी के लिए जाना है। तो पायलट स्टडी के लिए जो डेटा हमारे पास आएगा उसको कैसे एनालाइज करना है। इट इज ए न्यू थर्ड जनरेशन स्टैटिस्टिकल स्प्रेडशीट डिजाइन्ड फ्रॉम द ग्राउंड अप टू easy to use, compelling alternative to the costly statistical product like SPSS and SES. उनके पैरेलल है। सारी एनालिसिस आप कर सकते हैं, आप देखेंगे। देखिए, और आप इंटरनेट पे जाइए और इसको सर्च करिए और देखिए मैंने इसको इंस्टॉल किया है। वंडरफुल एप्लीकेशन, बिल्कुल देखेंगे जिन लोगों के एसपीएसएस के साथ फेमिलियरिटी है वो लोग अप्रिशिएट करेंगे। ये देखिए आपका फर्स्ट पेज है स्प्रेडशीट। आप डायरेक्टली डेटा आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं एंटर करता हूँ 1 2 3 4 5, ये डेटा मैंने एंटर कर दिया। और यहाँ पे मान लीजिए मैं जेंडर लेता हूँ लाइक दिस, यहाँ पे मैं एज ले लेता हूँ लाइक दिस। और जैसे देखिए ए है, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, आईडी। देखिए आईडी नेम चेंज होगा। बी, मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, जेंडर। तो इसकी कैटेगरीज हैं, इनको लेबल्स भी हम दे सकते हैं। एंड सी, एज। ये आपका डेटा तैयार हो गया। न्यू डेटा वेरिएबल आप एड ऑन कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब इसी डायरेक्शन में देखिए फ्रीक्वेंसीज आप क्लिक करिए। देखिए जेंडर आप इधर ले लीजिए, जेंडर की फ्रीक्वेंसी आप लीजिए। देखिए आउटपुट आपके सामने आ गया। ओके, वंडरफुल एप्लीकेशन। और आगे चलते हैं सब। बहुत सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। देन एक्सप्लोरेशन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लीजिए आप। एज के लिए देखिए ये आ गया, मीन आ गया, मीडियन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। बाय जेंडर अगर आप देखना चाह रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ले आइए। देखिए मेल, फीमेल, आप इनको नाम दे सकते हैं। आई एम जस्ट मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू सारी आ गई। इस तरह से देखिए एक्सप्लोर करने में ये सारी एनालिसिस है। You can go for the testing the hypothesis, independent samples t-test, paired one, analysis of variance when you are to compare more than two means, regression देखिए, correlation matrix वगैरह वगैरह वगैरह, factor analysis, reliability analysis, PCA, EFA, CFA, और क्या चाहिए सब। एक ह्यूमैनिटीज में रिसर्च के लिए इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती स्टैटिस्टिक्स की। अब देखिए यू कैन क्रिएट योर ओन डेटा। आप इसमें डेटा डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं जैसे मैंने आपको करके दिखाया। लेकिन अगर मैं एग्जिस्टिंग डेटा को रीड करूं, मेरा डेटा एक्सेल या एसपीएसएस या किसी दूसरे स्प्रेडशीट में, तो देखिए ये मेरी कैसे मदद करेगा। आप यहाँ पे क्लिक करिए और ओपन करिए। और ओपन करने के बाद देखिए ये एम्प्लॉय डेटा यहाँ पे मेरे पास है। देखिए ये एसपीएसएस में था, पूरा डेटा देखिए 420 का, ये परहैप्स ज्यादा है, 474 का डेटा ये मेरे पास पूरा आ गया एसपीएसएस से, इसमें पढ़ के। अब देखिए फ्रीक्वेंसीज पे हम जाते हैं। देखिए जेंडर, देखिए फीमेल 216, मेल इतने आ गए। अब जॉब कैटेगरी का देखना चाहें, देखिए जॉब कैटेगरी का आ गया। और एजुकेशन का फ्रीक्वेंसी देखना चाहें, देखिए एजुकेशन का आ गया।
आ गया ना, फ्रीक्वेंसी आपको आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए टी टेस्ट, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट। तो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है करंट सैलरी, मैं जेंडर के हिसाब से देखना चाहता हूं। देखिए देखिए ये रिजल्ट आ गया मेरे पास, टी की वैल्यू ये है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये है n-2 एंड p हाईली स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। अब देखिए मीन डिफरेंस मुझे चाहिए, देखिए मीन डिफरेंस ये आ गया, और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स चाहिए, देखिए फीमेल मेल का मीन ये था, ये सब आ गया। प्लॉट चाहिए अगर देखिए तो आपको प्लॉट भी दे देगा आपको। अगर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करना है तो आपको ये आ जाएगा। अजम्पशंस अगर सेटिस्फाई करने हैं, देखिए हर चीज है सब आपके पास। जो लोग शेपेरो टेस्ट यूज फॉर एग्जामिनिंग द नॉर्मलिटी, इक्वलिटी ऑफ वेरिएंसेस के लेवेंस टेस्ट, हर चीज है। जो आप एसपीएसएस में करते आए हैं, जो लोग फेमिलियर हैं, यहां से कॉपी कर सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली एक्सपोर्ट इट इनटू द डिफरेंट फॉर्मेट एज यू विश। अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं सब। कॉरिलेशंस में जाते हैं, देखिए कॉरिलेशन मैट्रिक्स ले लीजिए। आई विश टू एग्जामिन द कॉरिलेशन बिटवीन सैलरी एंड करंट सैलरी एंड बिगिनिंग सैलरी। देखिए 0.880 पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कॉरिलेशन आ गया। इससे ज्यादा और क्या एक्सपेक्ट करेंगे सर। फ्रीली अवेलेबल है जेमोवी, आप यूज करिए। आप अगर आपका रैंक्स में डेटा है तो देन यू कैन गो फॉर स्पीयरमैन। फ्लैग सिग्निफिकेंट लेवल देखिए, एन की वैल्यू भी चाहिए तो वो भी आपको बता देगा। कॉरिलेटेड पॉजिटिवली और नेगेटिवली, देखिए वो भी आपके सामने आ जाएगा, नेगेटिवली तो वो साइन आ जाएगा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। रिलायबिलिटी एनालिसिस, एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक, सारी चीजें करेगा जो आप करते आए हैं। फाइन। हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए। गुड आफ्टरनून। हाँ हाँ, बोलिए, मैं क्लास में हूँ इस वक्त। कैन बी टॉक आफ्टर 5:30 और सो प्लीज। थैंक सो मच। ठीक है, आपने देखा फ्रेंड्स, एनालिसिस यूज करिए सब, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। मैंने जम्मू भी आपसे डिस्कस किया। अब एक्सपर्टीज के बारे में देखिए, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, रिसर्च डिजाइन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वगैरह वगैरह, ये सारा आपके पास रहेगा। अब यहाँ पे कई बार ये आता है कि देखिए जो मैंने एक्सपर्टीज के बारे में कहा, ये चीजें कई बार हमारे लिए बहुत मुश्किल होती हैं। भाषणी करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एप्लीकेशन बनाई है, आप इसको यूज करिए। किस लिए। कई बार ट्रांसलेशन हमारे लिए मुश्किल होता है, कई बार बात करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो देखिए भाषणी आप यहाँ पे लिखिए, और perhaps it will be here, let me check it. भाषणी इस तरह से एक एप्लीकेशन है, ये एंड्रॉयड के लिए भी है और आपके पीसी के लिए भी। आप, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, दैट यू कैन यूज इट। ओके, इस तरह से मैंने इंस्टॉल किया था। लेट मी चेक इट, इट मस्ट बी। आप इसे यूज करिए, वंडरफुल एप्लीकेशन है। मैं इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगाना चाह रहा। ओके, तो इसको आप यूज करें। और जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि आप यू कैन इंग्लिश में देखिए, आप ये टाइप करेंगे, हिंदी में इस तरह से आ जाएगा। यू कैन टेक्स्ट, वॉइस, हर चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से ये एप्लीकेशन है, यहाँ पे ये आपको सुन रहा है और यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दूसरे लोगों को बोल रहा है। ओके, एंड ट्रांसलेट टू डिफरेंट लैंग्वेजेस एज वेल during the conversation, during the meeting as well. And
paste and translate within a fraction of second and select the language. ओके इसको यूज करिए, वंडरफुल एप्लीकेशन है। मुझे इस वक्त इसमें थोड़ा सा वक्त मैंने लगाना चाह रहा है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें मुझे आपसे करनी है। ओके प्ले भाषणी ऑन द पीसी, यहाँ पे आप जाके यू कैन गो फॉर भाषणी, वंडरफुल एप्लीकेशन। मैं इसे क्लोज करूंगा। मैं सिर्फ इस वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ दैट यू कैन यूज इट। फाइन, आगे बढ़ रहे हैं। सब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें आपसे करनी अभी वक्त है। इथिकल कंसिडरेशंस बहुत जरूरी हैं अपनी रिसर्च में। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी इंश्योर करनी है, डिसेप्शन नहीं होना चाहिए, minimize the deception, transparent reporting, conflict of interest, responsible conduct। रेस्पोंडेंट के साथ देखिए ऐसा ना हो कि हमारी पहली और आखिरी मुलाकात हो। एक बॉन्ड ऐसा होना चाहिए कि एक रिसर्चर आए थे और उन्होंने अपना काम किया और चल दिए, उनको क्या रिटर्न मिला, you need to look into it। fair treatment, community engagement, data management, continuous monitoring, and so on। Methodology, very important part of the research project management। डिफरेंट तरह की रिसर्च डिजाइंस होती हैं फ्रेंड्स, ये तय करना है कि आपकी रिसर्च किस तरह की है, whether it is quantitative, qualitative or mixed research design, that you need to decide at the onset। क्वांटिटेटिव रिसर्च में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन क्वालिटेटिव में भी बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत कई सालों से काम कर रहा हूँ यूपी पुलिस के साथ में क्वालिटेटिव रिसर्च पर, और बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स आते हैं। एक्चुअली वी हैव डेवलप्ड द टेक्स्ट एनालिटिक पैकेज फॉर देम। इंटेंशन ये था कि उन्होंने हमें 10,000 FIR का डेटा दिया। 10,000 में हमने 400 FIRs में देखा कि मर्डर हुआ है, और मर्डर हुआ है। मर्डर देखिए, क्राइम सिर्फ मर्डर है, लेकिन 400 FIRs में जो टेक्स्ट था उसका प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग था। देयर वाज नो कॉमनैलिटी। इसीलिए शायद हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं उनका टाइम बहुत ज्यादा लगता है। सो वी डेवलप द टेक्स्ट एनालिटिक पैकेज टू देम कि साहब ये जो पैराग्राफ है FIR का, ये फीड करिए एप्लीकेशन के अंदर, and within a fraction of minute it will guide you the dominant cause of the crime, and next change will be there, जो कि एक इंक्वायरी ऑफिसर को बहुत मदद मिलेगी टू मेक ए डिसीजन अबाउट द केस। और बहुत ही वंडरफुल, इट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे स्टूडेंट्स भी कई हैं, PhD भी अवार्ड हुई हैं और काम भी कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की मन की बात पर एक प्रोजेक्ट हमने सबमिट किया था। उस पर ओवर द नेशनल लेवल पे वो प्रोजेक्ट्स मांगे गए थे, तो उस स्कीम के खिलाफ ही कोर्ट केस हो गया। डॉक्टर सीमा कुमारी प्लीज म्यूट कर लें। तो No, ma'am. Please. रिसर्च में बहुत गुंजाइश है करने की। सैंपल साइज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं रेंडमली। बहुत सारे मेथड्स हैं, SPSS में है, सैंपल साइज सिलेक्ट कर सकते हैं रेंडमली। एनालिसिस, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है मेजरिंग टूल की, वो सारी चीजें ह्यूमैनिटीज वाले जानते हैं। एंड नाउ मेथोडोलॉजी का पार्ट है, तो इसमें सर्वे मंकी करके देखिए एक एप्लीकेशन है OpenAI की।
हम उसे डिस्कस करेंगे। बहुत ही वंडरफुल एप्लीकेशन है सर्वे मंकी। मैं क्लोज करता हूँ, रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएं, और यहाँ पे आइए, देखिए मैंने टाइप किया सर्वे मंकी। सर्वे मंकी, द फर्स्ट लिंक को मैंने क्लिक किया। देखिए गेट आंसर्स विद सर्वे, क्रिएट ए सर्वे, चूज। देखिए ये इनके अपने पैकेजेस हैं, लेकिन वी आर इंटरेस्टेड टू गो फॉर द फ्री। फ्री में अनलिमिटेड चीजें हैं। देखिए क्रिएट सर्वे, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब देखिए स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, बिल्ड विद एआई। देखिए बाय टारगेटेड रेस्पॉन्सेज, कॉपी ए पेस्ट सर्वे, इंपोर्ट क्वेश्चंस, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट। अनलिमिटेड चीजें हैं। हम तो एआई का इस्तेमाल करेंगे। देखिए वंडरफुल चीजें, देखिए सब मैं यहाँ पे कर दूं बिल्ड विद एआई। कितनी आसान जिंदगी हो गई है ये देखिए आप। अब देखिए मैं इसके लिए एक मैंने प्रॉम्प्ट बना के रखा है, मैं उसी पर आता हूँ। ये क्वेश्चन है, देखिए ये मैं इनसे कहना कराना चाह रहा हूँ, और आप देखेंगे यहाँ पे मैं थोड़ा स्लो चलूंगा। देखिए यहाँ ये बहुत सारे हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एजुकेशन, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, इवेंट, मार्केट रिसर्च। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। देखिए क्या है, create 10 questions to study employee motivation measured on a 5-point Likert scale and also add 3 negatively scored items। देखिए मैंने प्रॉम्प्ट दिया, एक मैसेज दिया कि मेरे लिए 10 क्वेश्चन का एक सर्वे बनाइए जो कि एम्प्लॉय मोटिवेशन को मेजर करे, और 5-point लिकर्ट स्केलिंग पे रेस्पॉन्सेज हों, जिसमें 3 कम से कम नेगेटिवली स्कोर्ड आइटम्स हों। बस देखिए मैंने इसको सबमिट कर दिया, और देखिए इसने अपना काम शुरू कर दिया। राइटिंग सर्वे क्वेश्चंस, जस्ट 1 मिनट के अंदर आप देखिए आपको 10 क्वेश्चंस ये लिख के देंगे, जो कि शायद हमें सालों या महीनों लग जाते हैं। आई स्टार्टेड यूजिंग कंप्यूटर इन 1986। परहैप्स कई पार्टिसिपेंट्स, ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स उम्र में मुझसे कम होंगे, और 86 में आप सोचिए कि उस वक्त कंप्यूटर कहाँ अवेलेबल था। आई वॉज वर्किंग इन आईसीएमआर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो एनआईसी में हमें आधा घंटे के लिए 1 महीने में रोस्टर मिलता था। 1986 से आज तक देखिए कंप्यूटर का बेइंतहा इस्तेमाल हुआ है। और माय डॉटर इज वर्किंग इन ब्रसेल्स बेल्जियम अपने हस्बैंड के साथ। ही इज आल्सो वर्किंग देयर, एंड शी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्शन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स फॉर इंडस्ट्री। मेरा बेटा बीटेक और एमआईटी यूएसए से एमबीए करने के बाद ही इज वर्किंग एज ए सीनियर बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर। मैंने तीनों बातें आपको किस लिए बताई, अपने बारे में, अपनी बेटी के बारे में, अपने बेटे के बारे में। आई यूज टू आस्क नंबर ऑफ टाइम्स कि बेटा तुम लोग एआई का इस्तेमाल किस तरह से, किस लेवल पर कर रहे हो। तो उनका क्या कहना था कि पापा यू कैन नॉट इमेजिन हाउ मच वी आर यूजिंग एआई फॉर द डिसीजन मेकिंग। हम शायद इसी चीज में अपने वक्त को जाया और वेस्ट करते चले जाएंगे। ये अनइथिकल है, ये नहीं है, तो गो टू हेल, कौन बॉदर कर रहा है यार। आप ये बताइए, मेरे लिए वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयर के अगर मैं एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर रहा हूं तो मुझे तो निकाल के बाहर खड़ा कर दिया जाएगा। एक सर्वे स्टडी करनी है, डिजाइन द क्वेश्चनर, आपने 6 महीने लगा दिए, किस काम के हैं आप उसके। अगर 5 मिनट के अंदर बना के लीजिए सब सर्वे बन गया तो आपका देखिए। अब देखिए क्वेश्चंस, देखिए वंडरफुल क्वेश्चंस। हाउ मोटिवेटेड डू यू फील टू कम टू द वर्क ईच मॉर्निंग, 5 ऑप्शंस। हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद द रिकॉग्निशन यू रिसीव फ्रॉम योर वर्क। इंग्लिश देखिए, ग्रामर देखिए, 5-point स्केल पर देखिए आ रहे हैं। हाउ ऑफन डू यू फील योर वर्क कंट्रीब्यूट्स टू द कंपनी गोल्स। देखिए 10 क्वेश्चंस आ गए मेरे पास से, यहां से हो गया। अब देखिए, अब यहां पे टॉप में कंटिन्यू, बस कंटिन्यू कर दीजिए, और ये क्वेश्चंस मेरे सर्वे की शक्ल में चले जाएंगे, जिस तरह से गूगल फॉर्म में आप बनाते हैं। देखिए ये मेरा यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूशन का लोगो लगा दीजिए, पेज टाइटल, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिख दीजिए, और वंडरफुल यहाँ पे देखिए थीम्स वगैरह हैं।
आपको किस तरह का यूज करना है, दैट यू कैन, वंडरफुल थीम्स हैं, करिए। और यहाँ पे आप एडिट करना है, देखिए डबल क्लिक करिए, आप इसे एडिट कर लीजिए। 2024 सेव कर दिया, देखिए टाइटल मेरा आ गया। क्वेश्चन कोई मॉडिफाई करना है, क्वेश्चन एडिट कर सकते हैं। ऑप्शंस उसके कम ज्यादा करने हैं, दैट यू कैन चेंज देम, देखिए ये कर सकते हैं। लॉजिक, क्वेश्चन लॉजिक, you can set the logic also. Move, copy, library and delete. Again you have all the opportunities to move on. Okay, once done, अब प्रीव्यू देखिए, प्रीव्यू सर्वे देखिए, ये आपका सर्वे बन गया। और यहां से यू कैन गो फॉर द कोलैबोरेटर्स, यू कैन गो फॉर द क्लाउड, यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट। अब देखिए एस्टिमेटेड टाइम टू कंप्लीट, 1 मिनट के अंदर आपका ये बन के आ गया। हाउ वुड यू लाइक टू कलेक्ट रेस्पॉन्सेज टू योर सर्वे, देखिए सेंड करेंगे या टारगेट आइडियल जो रेस्पोंडेंट है उनको आप भेजेंगे। आपको सेंड करना है, मेल के जरिए करना है, लिंक भेजना है, आप इस तरह से, दैट यू कैन एनालाइज द रिजल्ट एंड प्रेजेंट द रिजल्ट्स। सारी चीजें आपको एक ही एप्लीकेशन के थ्रू मिल रही हैं। यू नीड नॉट टू गो फॉर प्राइसिंग, बहुत सारी स्टडीज के लिए इट इज फ्रीली अवेलेबल। जब एडवांस लेवल के रिसर्च स्टडीज आएंगी, दैट यू कैन गो फॉर दैट। आप यहाँ पे क्लिक करिए और यहां से देखिए दैट यू कैन शेयर द सर्वे। आपका सर्वे चला जाएगा और आपके रिजल्ट्स आपके डेटाबेस में एक्सेल शीट में आ जाएंगे। डन हो गया, कंप्लीट आपकी स्टडी होगी। दैट्स द एंड ऑफ द प्री। रिटर्न टू द सर्वे एडिटर, दोबारा आ जाइए, वगैरह वगैरह। थोड़ा सा डिफरेंट करने की जरूरत है सब। मैं क्लोज कर रहा हूँ अब, कुछ चीजें खत्म होनी चाहिए, काफी वक्त है। मैंने आपसे सर्वे मंकी भी डिस्कस किया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि जब भी कोई एक्टिविटी या टास्क या प्रोजेक्ट आप हाथ में लें, टाइमलाइन बहुत इंश्योर करना है। ट्राई टू सेट स्टैंडर्ड्स फॉर योर सेल्फ एंड फॉलो देम। अगर आप सिस्टमेटिक नहीं हैं तो नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू। ट्राई टू सेट स्टैंडर्ड्स फॉर योर सेल्फ। 9 बजे अगर क्लास शुरू होनी है तो 9 बजे आपको क्लास में होना है। ट्रस्ट मी, self esteem will be very high. The feedback that you are going to receive from the students or different stakeholders will be wonderful. हम क्यों नहीं कर सकते साहब? I started working from 1986. ऑलमोस्ट देखिए 4 डिकेड होने वाले हैं और अभी 5 साल का और वक्त है मेरे पास में। मुझे तो कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ। अप्रोच सिर्फ यही थी, सेल्फ एस्टीम। Once the task is assigned by the supervisor or boss, I never used to give an opportunity to remind कि आपने ये काम नहीं किया। थोड़ा सा सिस्टमेटिक होने की जरूरत होती है। टाइमलाइन, मेरे सारे PhDs विद इन द मिनिमम टाइम अवार्ड हुए हैं और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। 1-2 बार हुआ एक स्कॉलर के साथ, तो मैंने उनको ठीक भी किया। ऐसा नहीं होता है, दैट यू नीड टू फिक्स ऑन। टाइमलाइन सेट करिए। तो इसमें देखिए गैंट चार्ट बहुत पॉपुलर है, एक्सेल की शीट है ये। इसमें देखिए आप इस तरह से सारी एक्टिविटीज को आप अपनी लिस्ट कर देंगे। जैसे देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रपोजल सबमिशन, किस डेट को स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ, कितने डेज लेंगे, और ये 10 टास्क डिसाइन हो गए। यहाँ पे कुछ चेंज आता है, डेट चेंज कर दीजिए, डेट चेंज हो जाएंगे। उसी तरह से आपका ये रेक्टेंगल चेंज हो जाएगा। ये तो आपको करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, PMS कहा जाता है। इंडियन रेलवेज में देखिए कितना बड़ा नेटवर्क है। 24 आवर्स में फॉलोअप हो जाता है, एक गेटमैन से लेके और मिनिस्टर ऑफ रेलवे तक। इंस्टीट्यूशन यूं ही नहीं चलती है। मेरा कई बार एकेडमिक्स में वाइस चांसलर साहब के साथ मीटिंग्स में
इस तरह की बात हुई है। मैंने कहा सर आई एम सॉरी, द फ्लो ऑफ द डेटा इज लिमिटेड इन द एकेडमिक्स। तो ही यूज टू रिएक्ट के नहीं खान साहब एकेडमिक्स में ऐसा ही होता है। नो, ऐसा नहीं होता है। जब तक डेटा का फ्लो नहीं होगा, इंफॉर्मेशन आपके पास परफेक्ट नहीं होगी, कंप्लीट नहीं होगी, यू कैन नॉट टेक द डिसीजन। तो ये इंफॉर्मेशन, तो आई सजेस्टेड कि साहब प्रोजेक्ट जिस तरह से मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, हर डिपार्टमेंट से आप मांगिए। आई हैव डेवलप्ड ए कस्टमाइज एप्लीकेशन, हर डिपार्टमेंट में भर के हर महीने पहुंचे कि आपके यहाँ कितने कोर्सेज चल रहे हैं, क्या अटेंडेंस है, कितने सेशनल्स हुए, कितने पब्लिकेशंस हुए, कितने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हुए, कितने सेमिनार वर्कशॉप फैकल्टी ने अटेंड की, वो सारा डेटा जस्ट क्लिक अवे। और डिफरेंट लेवल पे फॉलो अप करके इट कैन बी कैप्चर्ड बाय द डिफरेंट रैंकिंग एजेंसीज। प्रमोशंस के लिए सारी चीजें उससे इस्तेमाल हो जाएंगी। लेकिन नहीं साहब, हमें जंग लगी हुई है ना। देन आई रिएक्टेड, मैं कहा सर क्या आईआईटीज और आईआईएम्स क्या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस नहीं है? दे आर हैविंग 360 डिग्री फीडबैक। वो डिफरेंट इसीलिए हैं कि वो अलग करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं। दे आर सिस्टमेटिक। टाइम लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मेरा कोलकाता में पोस्टिंग था तो वहां पे ऐसा सीन था कि मैं जा रहा था वहां खड़गपुर, और रास्ते में एक ड्रिलमेंट हो गया, और ड्रिलमेंट होने की वजह से मेरी ट्रेन रुक गई, और मुझे करीब 5 घंटे लेट में पहुंचा खड़गपुर। तो मुझे एक इनवाइटेड टॉक डिलीवर करनी थी। ट्रस्ट मी, आई वॉज एबल टू रीच इन द क्लास। जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने कहा कि सर जिस वक्त भी आप आए, आप सीधे, आपको पिकअप करके क्लासरूम में लाया जाएगा, आप किस वक्त भी आए। तो ट्रस्ट मी, आउट ऑफ 110 स्टूडेंट्स इन द क्लास, द अटेंडेंस वाज 104। और टाइम क्या था? सुबह का 1:10। फ्रेंड्स, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए शायद हम कुछ हमारे हायर एजुकेशन में हम बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उसकी जरूरत है हमें सोचने की। तो ओके, आई डिस्कस द सर्वे मंकी ऑल्सो, टाइमलाइन ऑल्सो, देन पोटेंशियल चैलेंजेस। बस 5 मिनट्स में मैं खत्म करूंगा अपनी बात। पोटेंशियल चैलेंजेस बहुत सारे हैं कि जब आपका प्रोजेक्ट हो गया, सारी चीजें हो गई, नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर रिपोर्टिंग। लेट मी चेक सम मोर, एक दो एप्लीकेशन और मैं आपके साथ अगर डिस्कस कर पाऊं। सर्वे मंकी, गैंट, मैंने माई बिब करके एप्लीकेशन भी बहुत अच्छी है, जो कि मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में। मैं कल देख रहा था, इट इज वन ऑफ द वंडरफुल एप्लीकेशन। मैंने टाइप किया, देखिए, और लॉगिन किया, और ठीक है। अब देखिए, एंटर और पेस्ट। यहाँ पे अगर कोई जर्नल मुझे यहाँ पे, जैसे कि टाइटल्स, आर्टिकल विद द डीओआई, लिटरेलिटी का मुझे मान लीजिए, लिटरेलिटी जर्नल है, और उसमें मान लीजिए मेरा आर्टिकल, जैसे वो हम इसी को आते हैं, हम इसको देख लेते हैं। मैंने इसको कॉपी किया, और ये रेफरेंस मैनेजर है, रिसर्च के लिए बहुत जरूरी है। मैंने पेस्ट कर दिया और सर्च किया। देखिए, ये देखिए आर्टिकल सबसे ऊपर आ गया है। इसको मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद माय बिब, देखिए साइटेशन यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। देखिए, देखिए, ये पहले था, पहले मैंने इंक्लूड किया था। ये साइटेशन यहाँ पे इस तरह से रेफरेंस मैनेजर आपका बनता चला जाए, कौन सा आर्टिकल आपने स्टडी किया वगैरह वगैरह। ओके, डाउनलोड द साइटेशन, ऐड द साइटेशन, इस तरह से आप बढ़ते चलेंगे। और देख लीजिए, ड्रैग, इसमें हम मान लीजिए एक आर्टिकल को इस तरह से डिटेल आप एंटर करें तो वो बहुत मुश्किल होता है कि उसका पेज क्या है, टाइटल क्या है, ऑथर क्या है, जर्नल क्या है।
आप माईबिब का इस्तेमाल करिए और डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। देखिए आप APA 7 के साथ जाना चाह रहे हैं, 6 के साथ जा रहे हैं, कौन सा आप एडिशन आप यूज करना चाह रहे हैं रेफरेंस मैनेजर के लिए, सारी चीजें यहाँ पे हैं। ओके, तो इस तरह से यू कैन स्टार्ट द न्यू प्रोजेक्ट। आप यहाँ पे ऐड द साइटेशंस ले आइए, कोई भी यहाँ पे आप आर्टिकल ले आइए, एंटर कर दीजिए और रेफरेंस लिस्ट में आपका ये आर्टिकल चला जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि इस तरह से हम अपनी मैं इसमें देखता हूँ एक और आर्टिकल हम ले सकते हैं इसमें। एक और देखिए मैं लेता हूं, मैंने लिया एक और हम ले रहे हैं रेफरेंस मैनेजर, बहुत ही वंडरफुल एप्लीकेशन है। सर्च जर्नल में मुझे करना है, देखिए ये आ गया, प्रेडिक्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ लेफ्ट एंड राइट ट्रीज। मैंने इसको क्लिक किया रेफरेंस मैनेजर में, देखिए सेव किया, सारे डिटेल्स फिलअप हो गया, देखिए ये रेफरेंस आ गया। और डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में आप जा सकते हैं। रेफरेंस मैनेजर एज ए रिसर्च प्रोजेक्ट, ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर, मैं कंप्लीट करूंगा अपनी बात को। और हम थे यहाँ पे पब्लिकेशंस की बात, पोटेंशियल चैलेंजेस हमने देख लिए, इम्पैक्ट बहुत जरूरी है कि इम्प्लीकेशन क्या है मेरी रिसर्च का। इसके लिए अब देखिए इम्प्लीकेशंस अगर हम देखें, मैं बहुत जरूरी है कि जब भी आप प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे रिसर्च का, तो आउटकम क्या होगा ये आपको बताना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे अगर इसी स्टडी को मैं अपनी को लूं, मैंने सिर्फ देखिए इतना लिया और मैं इम्प्लीकेशन ऑफ रिसर्च स्टडी, जो मैंने प्रपोज रिसर्च स्टडी है उसका इम्प्लीकेशन क्या रहेगा, आउटकम क्या रहेगा, किसको क्या मिलेगा। अब देखिए मैंने एंटर किया, मेरे सामने ये सारी चीजें लिखकर आ जाएंगी। देखिए देखिए पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, फोकस ऑफ रिसर्च, मोर कर दीजिए, मोर आउटकम्स। देखिए स्पेशल एबिलिटी, रिस्क टेकिंग बिहेवियर, टाइप ऑफ एक्सीडेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मिक्स डोमिनेंस, मिटिगेटिंग फैक्टर एंड सो ऑन। ये सारे आपको इनपुट्स मिलेंगे किसी भी रिसर्च स्टडी को करके। तो सब ये भी चीजें हमने देखी। और इसके बाद सम 2-3 मिनट्स मोर, स्टेक होल्डर्स, किसको क्या मिला बहुत जरूरी है, आपको बताना पड़ेगा। बैलेंसिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स, आपको फंड्स मिला, आपको प्रमोशन मिल गया, पार्टिसिपेंट्स को क्या मिला, फंडिंग एजेंसी को क्या मिला, इंस्टीट्यूशन को क्या मिला, इट हैज टू बी क्लियरली मेंशन्ड इन योर प्रपोजल। ओके, पब्लिकेशन एंड डिसेमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं ये लोगों तक पहुंचे, ये ना हो कि आप ही का लाइब्रेरी की एक खूबसूरती बन के रह जाए या आपके CV की खूबसूरती बन के रह जाए। नो, इट हैज टू बी ओके। तो इसके लिए बहुत सारी देखिए रिपोजिटरीज हैं इन इंडिया, ICSSR है, शोध गंगा है, अदर रिपोजिटरीज हैं। परहैप्स ये मैं दिखा पाऊँ आपको, शायद मैंने क्लोज कर दिया। ICSSR में आप जाएंगे तो वहां पे बेनतहा देखिए इनके पास कितनी स्टडीज हुई हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हैं और उनका क्या आउटकम रहा। आप इसमें जाइए और यहाँ पे देखिए नेस्ट डॉक करके ओपन एक्सेस लाइब्रेरी कैटलॉग, आप देखिए अपने स्कॉलर्स को बताना पड़ेगा कि कहाँ से आप क्या चीज ले सकते हैं, क्या देख सकते हैं। जो कि देखिए कितना खूबसूरत लाइब्रेरी, कितना जबरदस्त कलेक्शन है जो कि हम लोग नहीं सोच सकते हैं। तो इस तरह की चीजों की जरूरत है, बताने की जरूरत है स्टूडेंट्स को, जिससे कि वो एक्सेस कर सकें।
दूसरा, सभी लोग आप फेमिलियर हैं, देखिए यहाँ पे और ई लाइब्रेरी है, वंडरफुल लाइब्रेरी आईसीएसएसआर की, जो सोशल साइंसेज के लिए है। बेनतहा यहाँ पे कंट्रीब्यूशंस हैं जो कि आप देख सकते हैं। जर्नल्स कितने फ्री हैं, कितने बुक्स हैं, वगैरह वगैरह। देखिए 4,50,000 ई रिसोर्सेज 24/7 एक्सेसिबल एंड अवेलेबल टू यू। आप अपने स्कॉलर्स को बताएं जिससे आगे आगे करें। शोध गंगा के बारे में आप सभी जानते हैं कि बेनतहा उसका एप्लीकेशन है। एंड वन मोर आर्टिकल, कभी वक्त मिले तो आप इसको पढ़िएगा, अदर रिपोजिटरीज। ये एक रिसर्च आर्टिकल एक साहब ने लिखा है, बहुत ही वंडरफुल एप्लीकेशन है ये। बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल है ये, मैं दिखा रहा था आपको, देखिए इस तरह से। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज इन इंडिया, बहुत ही वंडरफुल एप्लीकेशन है। किस इंस्टीट्यूशन ने किस किस लिंक के तहत देखिए अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर रखा है, जो कि रिसर्च के लिए आप देख सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो करना तो पड़ेगा। द लास्ट नॉलेज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, बस 5 मिनट और मुझे देंगे। ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे दिमाग में थी कि आपसे डिस्कस मुझे करनी है। माइंड मैप किस तरह से बनाया जाए। देखिए अगर इस तरह से जो मैप आप राइट टॉप कॉर्नर पे दे रहे हैं, अगर ये आपसे बनाने के लिए कहा जाए तो ट्रस्ट में हफ्तों और महीनों लग जाते हैं। यही काम देखिए 5 मिनट के अंदर अगर एआई एप्लीकेशन या सिस्टम आपके लिए करता है तो देखिए कितना आसान है। देखिए स्टेप्स क्या है, माइंड मैप विद चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में जाइए और देखिए यहाँ पे मैंने ये लिंक, देखिए सजेस्ट ए माइंड मैप फॉर द टॉपिक रिसर्च प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखिए बस 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा मैं आपको। मैंने ये क्लोज किया, ये क्लोज किया और यहाँ पर क्लोज किया। देन चैट जीपीटी में हम आते हैं। चैट जीपीटी में मैं आया और वहां से देखिए जो मैंने आपसे शेयर कर रहा था, टाइप सजेस्ट ए माइंड मैप फॉर द टॉपिक रिसर्च प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब देखिए ये हमें माइंड मैप किस तरह से बना के देगा। यहाँ पे देखिए मैंने पेस्ट कर दिया सजेस्ट ए माइंड मैप फॉर द टॉपिक, और मैंने देखिए अपलोड कर दिया। अब देखिए ये सारी एक्टिविटीज मुझे बता रहा है कि जब आप रिसर्च प्रोजेक्ट को मैनेज करेंगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द रिसर्च प्रोजेक्ट होना चाहिए, की कंपोनेंट्स होने चाहिए, स्टेक होल्डर्स आने वगैरह वगैरह। इसने मुझे ये 15 एक्टिविटीज दे दी विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ मिनट। अब इससे आगे मैं चल रहा हूं, देखिए टाइप, अभी टाइप प्रोवाइड द सेम इन मार्कअप फॉर्मेट। अब ये वाला जो है ये भी आप लिख दीजिए, इसको यहां से कॉपी करिए और वहीं पर आइए चैट जीपीटी में आपने पेस्ट किया और इससे कह दिया आप इसको मार्कअप फॉर्मेट में दीजिए। तो इसने देखिए ये इसने कोड लिख दिया आपके लिए, कोड लिख कर आ गया आपके पास में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कॉपी द मार्कअप कोड। अब यहां से इसको कॉपी करके और ये वाला जो लिंक है देखिए, पहले हम इसमें आ जाते हैं, ये वाला लिंक हम कॉपी करते हैं और ये कॉपी किया मैंने, मैं यहाँ पे पेस्ट किया और एंटर कर दिया। मैं दोबारा कॉपी करूंगा उसको, इस लिंक को, मार्कअप। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, ये इसका लिंक जो है वो काम नहीं करता है। मैं यहाँ से इसको लेता हूँ।
Okay, this has some problem. मैं दोबारा करता हूँ इसको. लिंक समटाइम्स प्रॉब्लम कर जाता है, जो कि मुझे कर रहा है. Let me finish it now. ठीक है, ये आ गया. देखिए, ट्राई इट आउट नाउ. मैंने क्लिक किया और जो चैट जीपीटी में थे हम, देखिए यहाँ पर ये वाला जो तमाम लिंक था, ये वाला यहाँ पे देखिए कॉपी कोड है. इसको मैंने कॉपी किया और आई एम सॉरी थोड़ा वक्त लगा. और यहाँ पे देखिए ट्राई मार्कअप में जो ये वाला लेफ्ट पैनल है, इसको कंट्रोल ए किया, पेस्ट कर दिया. देखिए ये मिला, माइंड मैप बन गया. देखिए सारी एक्टिविटीज देखिए, अगर आप देखें, रिसर्च प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्लानिंग फेज में क्या क्या आपको करना है, एग्जीक्यूशन फेज में क्या क्या करना है, मॉनिटरिंग में क्या क्या करना है. कैन यू, क्या आप इसे मैन्युअली बना सकते हैं विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स और सो? महीनों लग जाते हैं सब. मैंने तो ये काम कुछ साल पहले नीपा में एक प्रोग्राम था, तो वहां पे हमें सिखाया गया था. हफ्तों लग गए थे इस काम को. अब देखिए डाउनलोड, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पे देखिए ये आपका कॉपी, यहाँ पे ये आपका मार्कअप बन गया. और इसे आप कॉपी कर लीजिए. कॉपी करने के बाद यू कैन पेस्ट एनीवेयर से. अगर अपने पीपीटी में अगर मान लीजिए आपको पेस्ट करना है, आप यहाँ पे ले आइए, इंसर्ट द न्यू स्लाइड्स एंड पेस्ट ओवर हियर. देखिए, नहीं, वो दूसरा फॉर्मेट मैंने पेस्ट किया. यू कैन इंसर्ट ओवर हियर पिक्चर, दिस डिवाइस, द डाउनलोड. मैंने HTML एक्चुअली किया है, तो HTML में तो ये दिक्कत आएगी. मैं दोबारा उसे कर देता हूँ बस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में. ये लिया मैं SVG, देखिए ये वाला डाउनलोड करता हूँ. SVG इस तरह से देखिए, ये आप इसे कॉपी करिए, सेव करिए, जहां चाहें आप इसको. सारी एक्टिविटीज देखिए आ गई. इसी से फिर आगे मार्कअप बना के अब लिटरेचर रिव्यू में यहाँ से लिंक देंगे तो आगे लिंक बढ़ता चला जाएगा. तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द नाइस पार्टिसिपेंट्स. लेट मी क्लोज नाउ. बहुत सारी बातें एक्चुअली प्लान थी और मैं, जी बताइए सर. आई एम सॉरी फॉर, नाउ आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चंस प्लीज. थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस हियरिंग. क्या मैं कुछ शेयर कर पाया? नाउ इट्स टाइम योर फीडबैक. आफ्ताब अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम. Yes, sir. Participants, if you have any question, any query, you can ask. Sir is here. Hello. Good evening, sir. Can I ask a question? Sure, ma'am, please. Yeah. So my question is, many times what happens that when we use ChatGPT, it gives us unreliable answers, especially regarding review of literature. When we ask them, many times I feel it is fabricated. Is No, it you are right. true? I'm sorry, ChatGPT has some limitations, but I suggested you can go for the Research Rabbit. जो मैंने डिस्कस किया, देखिए वहां पे देखिए Yes. वंडरफुल चैनल्स एंड वंडरफुल रिव्यू आपको मिलेंगे. हाँ सर. ChatGPT, जेमिनी, बार्ड के लिमिटेशंस थे. हाँ और जी. डॉक्टर साहब एक बात और बताएं, देखिए थोड़ा सा है कि व्हेन यू आर यूजिंग फ्री वर्जन्स, तो वहां पे थोड़ा सा तो ये लोग डाइल्यूट करते हैं क्वालिटी को. अच्छा, तो सर अगर हम फ्री वर्जन यूज ना करें और पेड करें तो उसमें ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है? 100%. इवन कि आप फ्री भी कर रहे हैं, आप देखिए ट्राई करिए. वी आर टीचर्स. एक डॉक्यूमेंट आप बनाइए और उसका प्लेगरिज्म चेक करा लीजिए. यू विल फाइंड लेस देन 5%. हाँ जी सर, मैंने ट्राई किया है और
आपकी बात 100% राइट है, उसका प्लेगरिज्म लो ही आता है। लो ही आता बट है। हाँ, बट मेरे साथ 1-2 इंस्टेंस ऐसे हुए कि वो पेपर ही नहीं था और चैट जीपीटी ने अपने आप उसका कुछ नाम बना दिया और रिव्यू में डाल दिया। क्योंकि तो ये देखिए थोड़ा सा अभी इन्फेंसी स्टेज पर है, फ्री वाला। हाँ, तो बिजनेस ओके। करने के लिए कुछ चीजें तो अपने पास, देखिए what I submit before you, actually the task those are manual or repetitive in nature. हम टेक्नोलॉजी से कराएं, उसके बाद उसकी ऑथेंटिसिटी, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी हम करेक्ट कर लें। यस सर, यस, मतलब वी हैव टू बी अलर्ट ऑन दैट। डेफिनेटली, लेकिन बहुत बड़ा टाइम तो हमारा सेव हो गया है। आप ये देखिए ना कितना, डेफिनेटली सर, बहुत, इवन नोट्स मेकिंग एंड बहुत सारे क्विज मेकिंग, उसमें भी एआई बहुत हेल्प करता आप है सर। महसूस करिए, देखिए ट्रस्ट मी, देखिए एज ए टीचर क्या सुबह से शाम तक हम यही सब तो करते हैं, हम बुक्स से लेके या गूगल से लेके कर रहे हैं। तो अब अगर एआई आ गया तो अब हमें तकलीफ हो रही है। नहीं सर, मुझे बिल्कुल नहीं है। आई एम क्वाइट फ्रिक्वेंट यूजर ऑफ इट। मेरे नहीं, स्टूडेंट्स के लिए मैं हर रोज डेली क्विज हर बनाती रोज, हूँ विद द हर हेल्प रोज, ऑफ एआई। हर रोज। जी, Yeah. मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर, द सेशन वाज वंडरफुल। और मैं आपका बात बिल्कुल सही है। मैं ये एडवोकेट करती हूँ कि वी हैव टू बी विथ द ट्रेंड एंड वी हैव टू यूज एआई टू स्पीड अप आवर रिसर्च वर्क एंड ऑल। जी 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 थैंक जी, यू सर फॉर द वंडरफुल सेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बताएं सर। Good evening, sir. सर, Sir, no doubt it was a wonderful presentation. Sir, I would like to request you, would you please share your PPT with us in the श्योर। group? देखिए मैंने कई बार अपनी टॉक के दौरान डॉक्टर साहब बोला था कि ये इमीडिएटली शेयर कर देंगे, यूजीसी एचआरडीसी करेंगी, और मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ। यू विल फाइंड ऑलवेज 100%। 8859644067 is my contact number. It is Department of Psychology, Aligarh Muslim University, Aligarh. आप कभी भी बात करिए, I will be happy to be at your expectations. Okay, thank you so much, sir. Thanks, sir. Aftab, sir, please share this PPT with us. Yes, sure. Actually, सर होता क्या है कि आप हमें बताओगे, ग्रुप तो चेंज होता है ना सर। मैं करूंगा तो मैं उसको, और बताइए, देखिए आप टीचर्स हैं, जब तक चैट बॉक्स में कुछ मैसेज न मिले तब तक नहीं लगता है टीचर को कि शायद मैं काम 100% नहीं कर पाया। आपकी राय क्या है, कुछ बताइए। नहीं मिल रही है फीडबैक। No doubt, sir, it was great, sir. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you so much. I'm Dr. Barkha from Uttarakhand. So somehow I missed the lecture, and just last 20 minutes I joined due to some. Actually, I'm outside, so due to some network issues and all. Sir, it must have been very enlightening. क्योंकि जो मैंने लास्ट में सुना है, तो सर वही मेरा रिक्वेस्ट है कि कैन यू प्लीज शेयर द पीपीटी सो दैट वी कैन गो थ्रू एंड श्योर, यू विल गेट इट 2 days itself. या थैंक यू सर, थैंक यू सर। और बताएं सब, कंक्लूड करें, दूसरे स्पीकर आपका वेट कर रहे होंगे। प्लीज अलाउ मी टू लीव द क्लास सर। Sure, sir. Thank you very much. Now we are going to join another session. Stay blessed. Thank you so much. Thank you so much. On behalf of HRDC MU, I would like to thank you again, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.